Thank you, Ashwarya. Hello, everyone. Very good evening to all. Hope I'm audible to everyone. Okay, thank you. So, guys, just first of all, let me know quickly that all of you are okay with the English, or should we continue in Hindi and English like mix? I think English it will be good. English. What about Yeah, others? English. Let me know. Yeah, it's fine. English is fine. Okay. English is fine, sir. Okay, so most of you are saying that English is okay, and if anybody feels any problem, any issue in between the session, you can just ping me out. Okay, so guys, see, we just have an hour to discuss all about the course. Okay, so let me just give you a brief idea of what actually we have included in this course and what you will be studying in these 30 days. Okay, share my screen. Okay, so hope it is visible to everyone. So in this entire session, we'll be dividing the session into 3 parts. First of all, we'll discuss about the layout part, okay, how the center line layout works actually. Okay, we are not into the field, but I would try to give you the exact feel of the field, how you will do the survey, how you will do the layout work, okay, and everything about that. Let's just go here first of all. Okay. We'll just discuss about the center line layout, how you can do the center layout in the field actually, right? And what are the different methods. Then we will discuss about the types of excavations, types of methods we use in the excavation and how their rates and everything is quoted. When we will discuss about the SOR, schedule of rate, okay, according to the PWD of any of the state item. We'll discuss about the objects. Sorry, we'll discuss about everything which is given in the SOR, how you will find the pick of the rates and everything about the different situations when you will be executing the execution work, right? And after the layout work, we'll move toward the survey part. Okay, here again we'll discuss different type of survey, okay, which are exactly related to the in the real scenario. We'll not discuss about the chain survey and other survey parts which you have read into the theoretical part. We'll discuss totally our discussion of surveying will totally based on auto label. Okay, we are not going to discuss about the total station part, rise and fall method, and another method which are basically needed to find out the RL. And after that, we will just discuss we'll just take different case studies. Okay, so these are the case studies which are involved. We'll just do a complete survey work of one particular area. Okay, how you will execute the survey work of a road and drainage. Okay, and how you can make this kind of RL profile. And then we will move towards the drain case study. Okay, this is a case study of survey of drain work. Okay, then how you will execute these things, how you will come to know that how much actually you need to excavate, how much is the earth quantity needed to be filled or removed. Okay, and then we will discuss about the contour too. Okay, how you will plot the contour map in Excel. So all this survey part will be done using the Excel. Okay, we'll take different case studies about the survey part. And moving up next, once we will finish the basics survey and basic layout work, we'll move towards the quantity estimation, billing, and rate analysis part. Okay, so let me just tell you guys what we have actually. We'll see how you can find out total number of labor required for any kind of work according to the DAR, which are the labor coefficients given in the DR. Okay, and then we'll take an example. Let me just open up the drawings for you guys. Okay, so these are the different drawings. Using these all drawings, we are going to do a complete case study. Okay, we are going to take a complete building example, residential building.
we will be doing the complete quantity estimation of this particular project, right from the beginning, okay, from the site cleaning, part which is exactly related to which is exactly related to some other works as well. Okay, so just a bit of introduction about that. Most of the things we'll be focusing on the construction work. Okay, so these are the different drawings. We'll be using all these drawings. We'll see how to read down these and how to do the complete estimation of quantities, how to prepare a BOQ using these all drawings. Okay, so these were some major drawings. Using this, we'll be preparing a complete estimation sheet. This is how it will looks like. Okay, and in next part, after doing this complete estimation, you'll be preparing this BOQ, okay, bill of quantity, which is exactly the main objective of this entire exercise. Okay, and we'll also talk about few of the examples how you can prepare an automated sheets on Excel, so that you just put the quantity on the Excel sheet, you'll get out the quantity here, right? So these are the template, how you can make these automated template in the Excel. We'll discuss about the part. Moving up next, guys. Next part will be after quantity estimation. Okay, estimation of the quantities. There will be a bar bending schedule part. Let me just check. Okay, maybe a network issue from your end. Please check. I think I am audible to everyone. मैं सब मेरी आवाज सब तक आ रही है या नहीं आ रही है? एक्चुअली ये बीच में स्टक हो गई थी आपकी आवाज भी और स्क्रीन भी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स. ओके, आई थिंक ये आपके साथ हुआ था या सबके साथ हुआ था? या दैट्स आई सॉरी आई डोंट नो बट मुझे लगा कि सबके साथ हुआ फिर बट मेरा नेटवर्क मैंने चेक किया एवरीथिंग इज गोइंग गुड एक्सीलेंट but for the 2 and 3 minutes I didn't hear anything. Okay, no problem sir, no problem sir. Okay, so let me just continue. Okay, let's please, just sir. cut. Then we will move ahead. We'll discuss about the bar bending schedule part. Okay, हम सारे components को cover करेंगे just from the starting, how to find, how to make a bar bending schedule sheet. Okay, just this PPT is not actually, this is of previous session, but anyways, okay, we'll discuss about each and every part, how to make a complete bar bending schedule for footings, different type of footings. Pile foundation is also included, different types of stirrups, and then moving further for column, beams, continuous beam. Okay, these are the different cases for continuous beam, right? And then slab portion, and at the last staircase too. Okay, so this will be the entire exercise for the bar bending schedule. Let me just show you guys how the bar bending schedule sheet will looks like once you will submit this. Okay, so this is how we will be preparing the complete bar bending schedule sheet. Okay, this is how you will be calculating कि किस diameter का जो आपका reinforcement है वो आपको कितनी quantity में purchase करना है, right? So this is the main objective of this exercise. Handout करेंगे हम. Okay, let me also show you the drawings. Okay. So these are the different drawings, guys, which we will be using for bar bending schedule. Okay, BBS बनाने के लिए. These are the different frames given for the continuous beam. This is for staircase. This is for slab. So important is that how you read all these drawings and how you actually execute all the things. And then again we'll discuss a few of the templates कि किस तरीके से हम Excel में templates create कर सकते हैं. Okay, to find out the bar bending schedule. Like if you'll see in this sheet, okay, this is specifically for stirrups. आपका stirrups चाहे ऐसा हो या इस shape का हो, these are just the drawings, okay, of any of the shape. आपको यहाँ पर सिर्फ quantities रखनी है. Okay, you just put the dimension here. आपको सिर्फ dimension रखना है and it will give you the exact shape and size of the bar जो आपको cut करना है, right? Let's moving toward the pile foundation. Same thing you can do with the pile foundation, and this is for isolated footing, right? Okay, moving up next.
Okay. Then we will discuss a bit about the billing portion. Okay. We will discuss about the different types of billing methods which are used. We will discuss how to fill the measurement sheet. किस तरीके से आपको साइट पे जब आप रहते हो किस तरीके से आपको measurement sheets fill करनी है, किस तरीके से आप bill abstract create करते हो, right? And we'll discuss about the DPR, how you will create a complete DPR जिसमें आप डे टू डे का प्रॉफिट एंड लॉस आपको कितना हो रहा है just by executing that type of work. Okay, you'll be able to find out that too. Okay, all right. And then moving toward the rate analysis part. Okay, we'll do the rate analysis for concrete, for plaster work, for brick work, for tiles, and for paint and putty, all this stuff. So this is about the rate analysis part. We'll see, and we will also compare it with the CPWD document, right? And then this is the PPT where I have, accumulated all the information which are basically important, either from the point of interview, okay, or which are important to take in care when you are executing the estimation, when you are calculating the estimation of any of the structure, whether it is building or anything. So this is the sheet which you have to focus. This is just a 16-page sheet. You don't need to work very hard, but you just have to see the sheet, follow this sheet for interview preparation, and just if you are executing the quantity and estimation job. Okay, so this was the overall introduction about the course. What are the different things included in this course? Okay, I just tried to give you a brief about that. Now let me just take a 5-minute break, and over to you guys. If you have any question in this part, then you can ask, or else we will just start with a small topic. Anyone? हेलो Yes, please. हाँ सर, मेरा ये है कि आप पूरी क्लास क्या इंग्लिश में ही लेंगे, मतलब जब अगर मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, मुझे रिस्पांस आया कई लोगों का, इसलिए हाँ मैंने स्टार्ट किया। मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था, देखो इंग्लिश इट्स नॉट लाइक कि इंग्लिश में क्लास होगी। मुझे लगता है हिंदी सबको समझ में आती है, इंग्लिश आए या ना आए। ओके, सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन हिंदी प्लस इंग्लिश। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश में सिर्फ क्लास होगी। आई कैन वही सर, क्लास इन अ मिक्स लैंग्वेज, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बारे में आप चिंता मत करो। सर एस्टिमेशन में क्या सिखाया जाएगा, थोड़ा आप बता सकते हैं? शायद मैं मिस कर गया। ओके, सी एस्टिमेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, मैंने आपको कुछ ड्राइंग्स दिखाई। क्या होता है प्रोसेस? सी, जब आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट होता है, राइट, सो आप एस्टिमेशन कैसे स्टार्ट करोगे? आप उसकी ड्राइंग्स को देखोगे। ठीक है, सो उन ड्राइंग्स को देखते हुए आपको इस तरीके की पूरी एस्टिमेशन शीट बनानी है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल अभी मैं लूंगा आपको फुटिंग का। ठीक है, तो ये मेरा एक्सकवेशन, हर एक चीज का मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चेक करना पड़ेगा कि वहां पर साइट क्लीन है या नहीं है, कोई अंडुलेशन है, कुछ ऐसा है लैंड। तो पहले मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक लेबल करना पड़ेगा, राइट? और यू कैन से कि साइट क्लीनिंग के लिए साइट क्लीनिंग करनी पड़ेगी, राइट? सो उसके लिए भी मुझे पेड़ काटने पड़ेंगे या मुझे अंडुलेशन हटाना पड़ेगा। ठीक है, सो वो भी क्या है, मैं एक टाइप का काम कर रहा हूँ, राइट? आई एम वर्किंग फॉर दैट। तो मुझसे कितने एरिया में कितनी क्वांटिटी का मेरा एरिया होगा जहां पर मैं वो वर्क परफॉर्म कर रहा हूँ, वो मेजर करना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डन हेयर। साइट क्लीनिंग हम किस एरिया में कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद अगर मुझे फुटिंग का काम करना है, मुझे फाउंडेशन का काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सकवेशन करना पड़ेगा, राइट? वहां से सॉइल हटानी पड़ेगी। ओके, तो मैं एक्सकवेशन का काम करूंगा। उसके लिए मैं क्वांटिटी एस्टिमेट करूंगा कि मैं किस पर्टिकुलर कितने क्यूबिक मीटर जो मेरी क्वांटिटी है सॉइल की वो हटा रहा हूँ, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट मी जस्ट शेयर अ ड्राइंग। ओके, इसकी बात करते हैं। ये ड्राइंग दिख रही है आपको? जी सर। ओके, ये सेंटर लाइन लेआउट है। यहाँ पर आप नीचे देखोगे, यहाँ अगर आप बीच में देखते हो तो आपको फुटिंग्स दिख रही हैं। ठीक है, इन फुटिंग्स के बीच में कॉलम्स हैं, राइट? तो आपको ऐसी ड्राइंग मिलेगी
ठीक है, वहां पर ऐसा आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ये फुटिंग का आपका क्रॉस सेक्शन है। F1 F2 दो तरीके की फुटिंग है हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में, राइट। उन F1 और F2 के आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं। ये रेनफोर्समेंट डिटेल है, वी डोंट नीड टू डिस्कस अबाउट द रेनफोर्समेंट डिटेल एज ऑफ नाउ। जब हम बार बेंडिंग शेड्यूल की बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो आपके पास डायमेंशंस हैं। अब इन डायमेंशंस का यूज करते हुए, सॉरी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इन डायमेंशंस का यूज करते हुए आपको किस तरीके से क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है कि आप कितनी क्वांटिटी का काम वहां पर परफॉर्म कर रहे हो। आप अगर सॉइल को एक्सकवेट कर रहे हो, जस्ट बिल्डिंग द फाउंडेशन देयर, राइट, तो आप कितनी सॉइल को वहां से निकाल रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको यहाँ पर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है इसी तरीके से, ठीक है, फॉर एक्सकवेशन। उसके बाद क्या कर, तो आप वहां पर सैंड फिलिंग करोगे, ठीक है। जब आप फाउंडेशन का काम स्टार्ट करते हो, सो व्हाट इज द प्रोसेस, एक्सकवेशन के बाद आप सैंड फिलिंग करते हो, फिर पीसीसी करते हो, राइट, एंड देन यू गो फॉर रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीटिंग एंड ऑल अदर स्टफ्स। सो आपको एक पूरी कंप्लीट शीट बनानी है कि क्या मटेरियल आपका कितनी क्वांटिटी में लगेगा, अगर आप कहीं पे एक्सकवेशन कर रहे हो तो कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो। जब आपके पास ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं, देन यू मूव टुवर्ड द अदर स्टेप जिसको हम बोलते हैं बीओक्यू, राइट। बीओक्यू क्या होता है, आपके पास बिल ऑफ क्वांटिटी कहलाता है बीओक्यू, ठीक है। वहां पर आपको क्या करना है, जो भी टोटल क्वांटिटी आपने एस्टिमेट की है, चाहे वो मटेरियल लग रहा हो, चाहे वो आपने वर्क जो भी आप कर रहे हो उसकी क्वांटिटी एस्टिमेट की है, यू विल हैव द स्पेसिफिक रेट। अगर आप पीडब्ल्यूडी के तहत काम कर रहे हो या सीपीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो उनके रेट्स होंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं फ्रॉम वेयर यू कैन रेफर द रेट्स। इफ यू आर वर्किंग फॉर एनी पब्लिक सेक्टर, सॉरी एनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, देन दे विल हैव देयर ओन रेट्स एंड एवरीथिंग। तो आपके पास क्वांटिटी है, आपके पास रेट है, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई दोस एंड यू विल गेट द फाइनल अमाउंट। तो इससे आपके पूरे प्रोजेक्ट में टोटल कितना अमाउंट लगना है वो पता चलता है आपको। गॉट इट? जी सर। Anyone else? Any other question? Sir, I have one question, sir. Yeah. Regarding this one, you are telling about the bar bending schedule, and one more thing, that's can you include this steel structure also? Okay. Steel So, framing. see, what do you mean by steel structure? What you need to be included? Including this steel types of structure, like we are doing a warehouse. In the warehouse, we require a sandwich panel and the roof, the wall cladding, roof cladding. That's and the steel works like slab of the deck. I totally understand your question. Okay. What I mean to say here, like, see, this entire course which has been designed is specifically for a building structure, right? And if you are talking about the other steel structures, right? So we'll be discussing entire things about the building structure. We'll focusing on the building structure quantity estimation, right? And similarly, with the bar bending schedule of components which are included in a building structure, we are not directly going into the steel structure and all, because there you don't need to, sorry, okay yeah, because, okay, because see, if you are talking about the steel structure type of components, so basically what happened, they are industry built, and I don't think so that there you need to find out the bar bending schedule kind of thing. Am I right? So, yeah, okay, fine, no issue. And the second thing is, there's a two types of the studies are here, like one is a infrastructure and one is a building structure. You will Sorry, teach I us. didn't get you. Can you please repeat the question? There's a two types of course here inside this one. There's one is infrastructure like road, and as I heard the first season, and the second one is for the building. Yeah. Okay. So see, initially I discussed about the surveying part. There we will discuss about the building also. कि आप अगर एक building में काम कर रहे हो, how you need to do the survey of that. Okay. आपको क्या करना पड़ेगा? आपको column mark करने पड़ेंगे, आपको foundation mark करना पड़ेगा. For that thing you need to perform the survey work, right? तो हम वो भी देखेंगे. आप अगर एक पूरी एंटायर फील्ड में जाते हो, कैसे आप आरएल मार्क करते हो डिफरेंट जगह के, वो भी देखेंगे. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रेन एंड रोड पार्ट एज वेल. तो वहां पर हम सारी चीजें कवर करने पड़ रहे हैं. But when we'll move towards the quantity estimation and bar bending schedule, we will focus on building structure. Okay. Not in road and other stuffs as of now. Okay, fine.
Okay, and as you told about the steel structure, we don't need there to perform these things, because when you'll when you are making anything using those things, steel structures, right, they are coming they are built in the industry, right? So you don't need to perform these stuff there. Okay, sir. Fine. Okay. Sir, I have a question does this course complete with the pre-tendering process, like estimation for the purpose of putting a tender or not? Okay, so a good question. Talking about your doubt, see what happened in the initial stage, tendering stage में क्या होता है, you just need to understand it. आप यही काम परफॉर्म कर रहे होगे, आप एक बीओक्यू प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है? अगर आप कहीं पर टेंडर पुट करने जाते हो तो आपका काम उस टाइम पे भी यही होता है। आप क्या करते हो, बीओक्यू बनाते हो। तो जो अभी यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है वो सारी वैसी ही एक्सरसाइज हो रही है। लेट सपोज कि आपकी खुद की कंपनी है, आप टेंडर डालना चाहते हो, ठीक है? आप प्रोजेक्ट लेकर के आपने रखा है, राइट? व्हाट यू विल डू, यू विल हैव द ड्राइंग। आप उन ड्राइंग के माध्यम से क्या करोगे, बीओक्यू प्रिपेयर करोगे और यहाँ पर अपने रेट्स डालोगे। यू विल फ्लोट दिस बीओक्यू इनटू द मार्केट, और जो भी आपके पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, ठीक है, आप उनके द्वारा एनालाइज करोगे कि टेंडरिंग में यू विल एनालाइज कि आपको किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है या नहीं देना है। सो प्रोसेस वर्क्स लाइक दैट। यू नीड टू प्रिपेयर अ बीओक्यू बिफोर floating the tender into the market. So that same exercise we'll be doing here also. So there's no difference कि आप पहले BOQ बना रहे हो या बाद में बना रहे हो। There's one more question, that is the material reconciliation for the final billing is included or not? Yeah, we'll discuss a part about material reconciliation कि material reconciliation क्या होता है। Okay, because see, it's not like included, we are not into the field, right? So you need to understand the concept of material reconciliation. अब यहाँ पर आप field में perform नहीं कर रहे हो तो material reconciliation exactly live होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, but अगर आपको पता है कि material reconciliation होता क्या है, किस तरीके से उसकी शीट फिल की जाती है, then definitely when you will get that kind of situation, you will be able to execute that, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Done. Thank you. Anyone else? Sir, there is also including any new rates also in the estimation. Sorry. New rates during the site execution. If the some variation will come or some additional work will be floated by the client or consulting, so we can how we will do the new rates. Correct. So how you need to tackle at that type of situation? जब आपके पास ऐसा कुछ आता है, स्कोप चेंज आता है, तो उसका एक एंटायर प्रोसेस होता है, राइट? जब भी आप साइट पे होते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना होता है, राइट? सो आपके पास मेजरमेंट शीट होती है, उस पे उस वर्क को आप इंक्लूड करते हो कि दिस इज द एक्स्ट्रा वर्क विच is needed to be, which is required to be executed to fulfill this your need. Okay, या अचानक क्लाइंट आपसे आके और के बोलता है कि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा वर्क आपको करना है। सो एट दैट पॉइंट क्या होता है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग बीओक्यू था उसको तो आप फाइनल कर चुके थे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है? अब वहां पर जो भी रेट्स आप दोनों के कोऑर्डिनेशन से फाइनल होंगे, यू विल बी वर्किंग ऑन दैट एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर दैट थिंग, राइट? सो वो एक एंटायर सेकेंडरी प्रोसेस है, ठीक है, कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्कोप ऑफ वर्क आता है या आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी होती है, या ऐसा बहुत बार होता है कि कोई स्पेसिफिक आइटम अगर आपके बीओक्यू में मेंशन नहीं है, राइट, बट फिर भी आप उस आइटम को एग्जीक्यूट करते हो, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप एग्जीक्यूट करते हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज, तो उसकी एक प्रोसेस होती है कि कैसे आपको उस चीज का पैसा लेना है क्लाइंट से, राइट? सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, बट या दैट शुड गेट अप्रूव फ्रॉम द क्लाइंट। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और क्लाइंट ने अप्रूव ही नहीं किया और आप बोलो पैसे दो, करेक्ट? Yeah, right, sir. I got it. Okay. Anyone else, guys? Any question? Sir, Sir, can you tell? Yeah, please go ahead. Certificate, sir. yes, definitely you'll get certificate. Kanan, Hello. yes, Sir, please. हम ये जो कोर्स के बाद एक बिल्डिंग पहले रेट एनालिसिस कैसे करना है सर? कर सकते हैं क्या? एक मिनट प्लीज, एक एक करके बोलो, आप एक एक करके बोलो हेलो प्लीज। सर, हाँ, एर्थवर्क के लिए रेट एनालिसिस कैसे करना है सर? ओके, Earthwork. अर्थवर्क के लिए प्लीज कंप्लीट योर रेट क्वेश्चन। एनालिसिस कैसे कैलकुलेशन करना है सर?
Okay, so see, you have different scenarios. जब आप अर्थवर्क करते हो उसका एक पूरा चैप्टर है. Okay, let me just show you into the sheet if I can. Okay, go ahead please ask the second question. कौन पूछ रहा था? आप बीच में पूछ सकते हो. फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर लीड है सर. Let me just discuss how we will do that thing. Okay, if you'll Can you see in please this reply, sir? document. Yeah. I'm just opening the document. Able to hear me? Hello. Sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay. जिसने क्वेश्चन पूछा है उस तक मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आ रहा है sir. Okay, fine. So see, we have a complete chapter on earthwork. Okay, कौन कौन से different scenarios हैं? ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं रेट एनालिसिस के टाइम पे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट. ओके, देयर आर डिफरेंट सिनेरियो फॉर अर्थवर्क. ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू चेक कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए, एंड देन वी विल डिस्कस कि क्या सिनेरियो बनता है और उसके बाद आपको कौन कौन सी चीजें रेट एनालिसिस में इंक्लूड करनी है. राइट? Can you share that copy, sir? Sorry. Can you share that copy, sir, for me? See, I'm sharing my screen. I hope it is visible to everyone. Oh yes, right. Fine. But I need to know, sir. For example, in 3 किलोमीटर लीड में हम कैसे कैलकुलेट करना है बोल के? आप किस जगह पर परफॉर्म कर रहे हो? आप क्या किस NHA सर, नेशनल हाईवेज में. NHA में अभी 4 लेन कर रहा हूँ सर, फॉर एग्जांपल. So see about the quantity estimation part, I'm not going to discuss about the highways and road. Price, what is the cost of network? I understand your question, but I told you that in quantity estimation part we'll be discussing about the building structures. Okay. Okay, sir. And what you need to consider actually, see how you will do the, let's take an example of in your case. Okay, you are doing the earthwork. Okay, you just know the total amount of volume of that particular place, and you know the compaction ratio and everything, what will be the total final amount of soil which will be needed after the compaction and all everything, right? Yeah, total quantity of soil, you got that thing. Then you just need to find out that what are the different types of labors which will be working there. Okay, what are the different machineries which will be taken care, कौन कौन सी machineries हमको include करनी पड़ेगी. Then you will add the contractor profit also, you will add the water and electricity charges, overhead charges. So there is an specific document. You just do one thing. If you want to go into the detail, just find out the DAR document of CPWD, okay, for road works, okay, road and highways. There's a different document for that. You'll get a proper analysis for each and every part in road and highways. Okay, sir. Okay, just refer that document. Okay, sir. Sir, during the class, will you share the materials like a soft copy of Excel or something, PDF books during the class? Yeah. All the things will be shared. जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे, right? Important things, I'll be sharing all those things. Okay, PPT you will get. PPT आपको वेबसाइट से मिलेगी, ठीक है? From any of the link, और बाकी की जो Excel and all other sheets हैं that I'll be sharing on daily basis. सर, हम जो कोर्स के बाद हम एक बिल्डिंग का एस्टिमेशन कर पाएंगे ना, मतलब ड्राइंग देख के कुछ? करेक्ट. जो भी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कोई भी चीज की क्वांटिटी एस्टिमेशन है आप कर पाओगे. एंड सी गाइस, लेट मी टेल यू वन वेरी बेसिक थिंग. जब भी आप क्वांटिटी एस्टिमेशन की बात करते हो, ठीक है, आपके पास क्या आता है? आप अगर शीट देखोगे जब हम कोर्स में बात करेंगे, सो देयर इज टू थिंग्स. आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये एक
छोटा सा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर आप लेआउट की बात करते हो तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट। सो अगर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, सो डोंट वरी कि आप बिल्डिंग एस्टिमेशन में बात कर रहे हो, आपके पास आपने पढ़ा था आइसोलेटेड फुटिंग, आपके पास आ गई पाइल फुटिंग, तो मैं कैसे करूंगा, या आपने लेआउट वर्क किया था एक रेक्टेंगल फील्ड के लिए, एक रेक्टेंगुलर एरिया के लिए, और आपके पास सर्कुलर आ गया, वैसे ऐसा केस होता नहीं है, तो आप कैसे करोगे, राइट। सो जस्ट फील कॉन्फिडेंस, ठीक है, द प्रोसेस आर सेम एट एवरीवेयर। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या बोलते हैं, क्या फॉर रोड एंड रोड स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि रोड में कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है, ठीक है, अर्थवर्क होता है, उसके बाद डीपीसी और बहुत सारी अदर टाइप ऑफ लेयर्स हैं, ओके। जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, रिजिड पेमेंट की बात करते हैं, तो अगर आपको उन सब का नॉलेज है और आपको पता है कि कॉम्पैक्ट करने के बाद कितना उसमें और आपका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जब आप यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बात करोगे तो भी वही चीज होती है, जब भी आप बैक फिलिंग करते हो और कॉम्पैक्ट करते हो तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इफ यू नो अबाउट दैट, आपके पास टोटल क्वांटिटी आ गई, आपको पता है अच्छे तरीके से कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ लेबर लगने हैं यहाँ पे, यू नो दैट, देन यू कैन डेफिनेटली डू अ रेट एनालिसिस ऑफ दैट पार्ट, राइट। स्लैब का बीबीएस कैसे निकालते हैं, देखो स्लैब का बीबीएस Realme C21 कोर्स के बाद जॉब भी दिलाते हैं, या वी प्रोवाइड एंड प्रॉपर जॉब असेसमेंट, ओके, बट यू नीड टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स। देयर इज एन प्रोसेस, जब आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे इन बिटवीन द कोर्स, ठीक है, यू नीड टू कंप्लीट दैट यू नो असाइनमेंट्स on time, and then after the analysis and all everything, we do provide job assessment. सर और थोड़ा मुझे ये एक सवाल था कि जैसे थोड़ा कुछ महीने पहले मैं एक एस्टिमेशन का और एक कोर्स किया था एक इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे कि सर फाउंडेशन तक का एस्टिमेशन करा के लॉन्ग वॉल शॉर्ट मतलब शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड पढ़ा के वो छोड़ दिए थे। तो उसके बाद का जो ड्राइंग स्टडी होता है घर के अंदर, वो उसके बाद से जो एस्टिमेशन निकालना है, तो हमारा ये वाला सिलेबस में वो सारा चीज भी कवर किया जा रहा है। करेक्ट, लेट मी जस्ट गिव यू एन ब्रीफ, ओके। शायद मैं बहुत जल्दी उस टाइम पे शीट यूज कर रहा था, आप लोगों को कुछ एस्टिमेशन में क्या मतलब सिलेबस में एक्चुअली क्या क्या चीज कवर होगा उसी का थोड़ा एक्चुअली सर जानने का मन था। I definitely got that. उस टाइम पे मैंने जल्दी में सारी शीट्स दिखाई थी। Let me just give you a time and then discuss about everything. Let me open all the drawings first of all, okay? ये स्क्रीन में प्लीज यार, जो भी ये कलरफुल पेन चला रहा है, प्लीज 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दो। ओके, सो देखो, जब हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, ठीक है, सो एस्टिमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे आपने बोला जहां भी अभी आपने पढ़ा वहां पे फाउंडेशन तक आपको पढ़ाया गया, राइट। सो फाउंडेशन के लिए आपको सिर्फ एक ड्राइंग लगेगी। अगर आप यहाँ पर नीचे देखते हो तो आई हैव ओपन ऑलमोस्ट 3 3 6 7 8 ड्राइंग्स, ओके। सो अगर आप पहली ड्राइंग को देखते हो तो फाउंडेशन तो यहीं पे खत्म होता है। यू हैव डिटेल्स अबाउट द फाउंडेशन, राइट, कि फाउंडेशन में कैसे आपको क्वांटिटी निकालनी है। लेट्स मूव टू आवर शीट नाउ, ठीक है। जब आप फाउंडेशन की बात करते हो तो एक्सकवेशन करोगे, फिर सैंड फिलिंग करोगे, फिर पीसीसी करोगे, फिर कंक्रीट करोगे, फिर शटरिंग करोगे। तो आपको ये पूरा काम पूरा करना है, तब जाकर के आपकी फाउंडेशन की क्वांटिटी एस्टिमेशन पूरी होती है, ठीक है। उसके बाद पेडेस्ट्रियल कॉलम आएगा, फिर आपको बैक फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर वहां से आप वॉल लाइन ब्रिक वर्क बोलो या पीसीसी बोलो, वो काम स्टार्ट करोगे, फिर ग्राउंड बीम आएंगी, राइट, फिर उसकी शटरिंग भी कैलकुलेट करोगे, फिर आप ब्रिक वर्क करते हो, राइट, फिर उसके बाद डीपीसी का कैलकुलेशन होगा, बिटुमिनस कोट लगाते हो उसका कैलकुलेशन होगा, सर फिर आप यस एस्टिमेशन का बेसिस से पढ़ाई होगी क्या? सॉरी प्लीज, आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी।
जी सर, मैं पूछ रहा था कि एस्टिमेशन का बेसिस से पढ़ाई होगी क्या? करेक्ट। हम एकदम बेसिक से जाएंगे कि अगर आपको, पहली बात तो अगर आपको सपोज करो एक घर बनाना है, ठीक है, और आपके पास प्लॉट है, जी आपको किसी क्लाइंट ने बोला कि यार ये मेरा प्लॉट है यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आपको प्लॉट का एरिया पता है तो आप वहां पे जाकर के मार्किंग कैसे करोगे, जिसको हम बोलते हैं लेआउट, ठीक है। उसकी मार्किंग कैसे की जाती है, ठीक है। जी जी अगर आपको उसने बता दिया कि यहाँ फला जगह पर मेरा प्लॉट है, ठीक है, इतने बाय इतने का प्लॉट है, दिस इज द एरिया ऑफ माय प्लॉट, ठीक है, मैं, आप वहां कैसे जाओगे, कैसे लेआउट I ड्रॉ have a करोगे। question, sir. I have a question. प्लीज जी जस्ट जी वेट जी फॉर अ सर। मिनट, एक को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, खत्म करने दो। उसके बाद आप वहां पर पॉइंट्स कैसे मार्क करते हो फुटिंग के लिए और कॉलम्स के लिए। जी उसके बाद जब हम ड्राइंग्स पढ़ेंगे तो ड्राइंग्स में से आपको कैसे हर एक चीज की क्वांटिटी को एस्टिमेट करना है, ठीक है। और फिर हम डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे जहां से हम रेट्स पिक करेंगे, उस रेट से हमको ये पता चलेगा कि टोटल कितनी क्वांटिटी लगनी है, राइट, टोटल कितनी क्वांटिटी लगनी है और कितना टोटल अमाउंट लगना है हमारा इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को बनाने में, राइट, जिनकी हम ड्राइंग्स देख रहे हैं। और उसके बाद ये क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के बाद हम उसका बार बेंडिंग शेड्यूल भी कैलकुलेट करेंगे, राइट, मतलब आपको कितनी क्वांटिटी में बार चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के, वो भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो आप इसको करने के बाद एक कंप्लीट प्रोजेक्ट मान के चलो, आपने यहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट कर लिया, ऐसा आप मान सकते हो उसके बाद, ठीक है। जी जी सर, तो सिर्फ बिल्डिंग के लिए रहेगा कि मतलब जैसे हाईवे तैवे और मतलब देखो इंक्लूड लगेगा दोनों इसमें? अलग चीजें हो जाती है, हाईवे एक अलग चीज हो जाती है, बिल्डिंग एक अलग चीज हो जाती है। जब आप क्वांटिटी सर्वेयर के जी तरीके काम भी करेंगे ना कंपनी में, तो आप हाईवे के लिए बिल्डिंग वाला काम नहीं करेगा, बिल्डिंग के लिए हाईवे वाला काम नहीं करेगा, ओके। दीज टू आर डिफरेंट फील्ड्स। अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है इन हाईवे, तो आपको हाईवेज की नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव स्टार्टेड योर करियर इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, यू शुड हैव एन नॉलेज अबाउट दैट। सो दोनों अलग अलग पार्ट हैं, हम फोकस करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग स्ट्रक्चर पर। सिर्फ सर एक बिल्डिंग क्वेश्चन है सर। स्ट्रक्चर। यस। सर हम जो एस्टिमेशन करेंगे सर, फिनिशिंग लेवल तक करेंगे या फिर बीच वहीं तक करेंगे, बीबीएस तक सर? बीवीएस इज अ पार्ट ऑफ एस्टिमेशन। आपको पूरा फिनिशिंग तक क्वांटिटी एस्टिमेट करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ना, अगर मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, सुपर स्ट्रक्चर जा रहा हूँ, ठीक है, फिर ब्रिक वर्क जा रहा हूँ, फिर सील बैंड, ये ठीक है, फिर स्लैब सील बैंड शटरिंग आया, ठीक है, फिर ब्रिक वर्क अप टू लिंटर लेवल। ऐसे अगर आप यहाँ पर लास्ट में जाकर के देखोगे, ठीक है, ये स्टेयर केस है और बीच में कुछ कॉलम हमारे हाइड है रोज, तो हम इसका पूरा ऊपर तक करेंगे, ठीक है, फिनिशिंग तक सारी चीजें। इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपका कुछ प्लम्बिंग का आइटम भी इंक्लूडेड है। लेट मी जस्ट ओपन दिस फॉर यू। और उसके बाद हम सारी चीजों का स्टील का भी एस्टिमेशन करेंगे, ठीक है। तो जब आप स्टील की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हो तो आपको बीवीएस बनाना होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारा कुछ इंक्लूडेड है, स्लैब, शटरिंग एंड एवरीथिंग, तो सर प्लास्टर भी हमको इंक्लूडेड है, फिर सर तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन की सर वो सब हमको ड्राइंग से पेंटिंग, थ्रू निकालना होगा ना सर? प्लम्बिंग और सर या इलेक्ट्रिकल सर? या ओके electrical will not be included. I'll be including only the plumbing thing, okay? ओके सर। बट मैं हाँ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे करना है। एंड सर पेंट एंड पुट्टी ये पार्ट भी सर उसमें इंक्लूडेड है सर? Yes, yes, this all thing will be doing stone work and everything. ओके थैंक यू सर। See, we are I going up to have a here, question, drainage sir. item, I have a sanitary question. item. Can I ask the question now? हाँ प्लीज पूछो यार, तुम ही पूछो पहले। सर क्या हमें ये सारा ड्राइंग्स का ऑटोकैड कॉपी मिलेगा या सिर्फ पीडीएफ कॉपी मिलेगा? I have a PDF. I'll share only the PDF. No AutoCAD. ओके। और सर मेरा और एक क्वेश्चन है, ये खाली एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज होगा या फिर उस क्वांटिटीज कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कितना मटेरियल लगने वाला है उसके बारे में भी बताने वाले हो? देखो, ओके, लेट मी जस्ट आंसर यू प्रॉपरली। जब आप किसी भी चीज का एस्टिमेशन करते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने एस्टिमेशन किया कि हमको कितना सॉइल हटाना पड़ेगा, आपके पास टोटल क्वांटिटी है। आपने एस्टिमेशन किया कि यहाँ पर कितना टोटल कंक्रीट लगेगा, आपने एस्टिमेशन किया टोटल कितना
शटरिंग लगेगा, ठीक है। तो आपके पास हर एक चीज की क्वांटिटी आ रही है। अब जब बात करते हैं हम मटेरियल की, या आपको कंक्रीट की क्वांटिटी पता चल गई, अब आपको उसमें से क्या निकालना है कि इसमें कितना सैंड है, कितना एग्रीगेट है, कितना सीमेंट है। आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने ग्रेड ऑफ सीमेंट आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आप ये निकालते हो कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लग रहा है। गॉट इट। सो हम उसको भी पढ़ेंगे। मतलब कितना मटेरियल लगने वाला है वो भी देखना है क्या? क्या मैं समझा नहीं है। नहीं समझा? यही देखना है कि अगर आपके पास किस किस पर्टिकुलर जगह पर कितना मटेरियल लगने वाला है, यही देखना है आप। मतलब मटेरियल भी, मतलब मटेरियल कितना परचेज करना है वो भी राइट, बताने वाले हो आप। राइट। अगर आप रेनफोर्समेंट परचेज करते हो तो कितने डायमीटर का कितना रेनफोर्समेंट परचेज करना है, कितना सीमेंट परचेज करना है, कितना एग्रीगेट परचेज करना है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और होप जैसे होप इट इज कि क्लियर। मेरा एक मित्र ने अभी कुछ मिनट पहले क्वेश्चन पूछा था कि पुट्टी और पेंटिंग के बारे में भी बोलने वाले हो क्या? तो करेक्ट। वहां पे एक लाइक हम जो भी यस, प्रोजेक्ट कंसिडर करने वाले हैं उतना कंप्लीट करने के लिए कितना लीटर पेंट लगेगा, कितना किलो करेक्ट। पुट्टी लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना कॉस्ट होगा, वो सभी गुड। बताने वाले हो क्या? कैसा है? यस, लेट मी जस्ट शो यू। आई थिंक शायद उस टाइम पे आपने मिस कर दिया हो। हाँ सर, मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन हो गया, यहाँ पे बारिश आ रहा था। कोई बात नहीं। ओके, ये देखो, जब हम रेट एनालिसिस की बात करते हैं और जब हम सीखते हैं कि रेट एनालिसिस कैसे करना है किसी भी चीज का, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चीजें कैलकुलेट होती हैं कि व्हाइट वॉश कितनी क्वांटिटी में लगेगा, कितना केजी लगने वाला है, पुट्टी कितनी लगनी है, पेंट कितने लीटर्स लगने वाला है। आपको पता चलता है कि एक लेबर किस कंडीशन में कितना पेंट कर सकता है, राइट। उसके बेसिस में आप ये एस्टिमेट करते हो कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरिया डालोगे अपना, ठीक है, और अपने आप जब आप ये चीज बनाना सीख जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सिर्फ एरिया डालना पड़ेगा और आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि हाँ अप्रोक्सीमेट इतना खर्चा आने वाला है आपको इतनी जगह पर पेंट करने के लिए। तो कोई भी टाइप का वर्क हो, चाहे वो प्लास्टर हो, आपको ये पता चलेगा कि प्लास्टर करने के लिए कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लगेगा, ठीक है। टोटल आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी जगह पर प्लास्टर कर रहे हो। इसी तरीके से कंक्रीट, अगर आपको क्वांटिटी पता है, ठीक है, और ग्रेड पता है, तो आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगने वाला है। होप आई एम बीच में राइट। बीच में या यू आर राइट सर, बीच में एक डिस्टर्ब करूंगा, सॉरी आपको, इसी से रिलेटेड। सर इसमें टाइम टेकन भी बताया जाएगा। सपोज कि अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है, मकान है, और उसमें जो आप जितने लेबर कॉस्ट कैसे, मतलब अगर 6 महीने में खत्म करने का तो 6 महीने का लेबर कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड रहेगा, तो क्या उस बेसिस पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 6 महीनों में खत्म होगा तो उसका प्राइसेस क्या होगा? मे भी इंक्रीज होगा, लेबर लेबर क्या स्क्वायर फीट से निकलेगा? रेट एनालिसिस कैसे करेंगे उसका? ओके, सी, तो जो भी आप लेबर कैलकुलेट करते हो ना कि कितना टोटल लेबर लगने वाला है, ठीक है, उसके लिए एक पूरी शीट है। आई जस्ट शो यू दैट शीट टू। ओके, लेबर एंड मशीनरीज आउटपुट, ठीक है, ये शीट मैं आपको शेयर करूंगा। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम DAR, ठीक है, जो रेट एनालिसिस का डॉक्यूमेंट है CPWD का, उससे डिराइव्ड है। उसमें आपको, मतलब वो पूरा आपको डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में, ये सारी चीजें एक्सेल में बनाई गई हैं। अब सपोज करो आपका इस टाइप का काम है, ठीक है, आप मैनुअल एक्सकवेशन कर रहे हो, ठीक है। अब इसकी आपको क्वांटिटी पता होगी कि कितनी क्वांटिटी में आप एक्सकवेशन परफॉर्म कर रहे हो। उसके लिए लेबर कोफिशिएंट का यूज करते हुए यहाँ पे खुद ब खुद आपको निकाल के देगा कि कितना टोटल लेबर रिक्वायर्ड होगा, और डेली बेसिस पे, मतलब आप उस काम को कितने समय में फिनिश करना चाहते हो, ये प्लानिंग का हिस्सा है, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वांटिटी एस्टिमेशन कि आप इस काम को करने में कितने दिन लगोगे। दिस इज एंटायरली अबाउट द प्लानिंग, राइट। कि वो आप जब कोई भी काम करवाते हो कॉन्ट्रैक्टर से, तो दो चीजें, दो फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज कि आपको किसी काम को करने का एक टाइम मिलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में आपको टाइम मेंशन करना होता है, टाइम मेंशन होता है कि इस प्रोजेक्ट को आपको 2 साल में खत्म करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो वहां से आती है टाइम की बाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हो कि आपके पास कितना लेबर अवेलेबल है, आप इस काम को कितने टाइम पे कर सकते हो। तो थिंग्स डिपेंड्स टोटली ऑन दैट, राइट। तो ये शीट मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको कैसे टोटल नंबर ऑफ लेबर्स
कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आपको प्रोडक्टिविटी पता है लेबर्स की, तो किसी भी काम के लिए कितना लेबर लगने वाला है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। यही सब पूछना था कि प्रोडक्टिविटी नहीं पता अगर, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? देखो, प्रोडक्टिविटी नहीं पता है तो एक सीधा सा ऑप्शन होता है कि आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछो, या उस काम को करवा करके देखो, या जो उसको करता है उसको पूछो। मतलब आप कॉन्ट्रैक्टर से पूछोगे अगर आपको प्रोडक्टिविटी नहीं पता है तो, कि भाई इस काम को इतने इतने क्वांटिटी में करवाना है, कितना टाइम लगेगा तुम्हें, कितने लेबर लगेंगे। सो दिस इज द वे टू अप्रोच। या आपकी ओके कंपनी में एक्सपीरियंस पर्सन होगा, उससे आप कंसल्ट करोगे। ठीक है, सेम यही चीज ओके फॉलो होती है प्लानिंग, राइट? ओके सर, फाइन। Hello. यस यस। Sir, I have one question. I missed the introduction part. Will you show the course content slide, sir? Yeah, sure. Can I just show at the end? Just give me 5 more minutes. Let me take all the questions. ठीक है, उसके बाद मैं आपको कंटेंट से गो थ्रू करता हूँ। फाइन सर, जो हम जो कैलकुलेशन करेंगे सर, वो मैनुअल होगा या प्लस एक्सेल शीट में होगा सर? एक्सेल शीट में होगा। इट इज मैंडेटरी टू फिल डाउन द एक्सेल शीट, क्योंकि आप जब काम करोगे कंपनी में जाकर के तो आप एक्सेल शीट में कर रहे होगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू फिल इट इनटू एक्सेल शीट, क्योंकि वहां से आपका टाइम भी बचेगा एंड यू हैव टू परफॉर्म इन दैट वे जब आप काम करने। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर भी आती है क्या एस्टिमेशन की? एस्टिमेशन के सॉफ्टवेयर्स है, but most of the companies are not using softwares for that. Okay, Candy है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए होते हैं, बट ज्यादातर इंडस्ट्रीज फॉलो करती हैं, they will just execute the things into Excel. ओके, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन सर मेरा। हेलो, प्लीज एक मिनट करके। हाँ, यही रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे सर, कभी भी हम सुन पाएंगे क्या? लाइक लाइव क्लासेस रहेंगी, बट रिकॉर्डिंग्स भी होती है उसकी, कि अगर मान लो आपने मिस कर दिया किसी दिन, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी डेली अपलोड होती हैं। अच्छा। फिर कितने दिन का कोर्स है सर? कब रहेगा लाइव क्लास? टाइमिंग बता दीजिए। 30 days का कोर्स है। ओके, एंड टाइमिंग्स लाइक फ्रॉम द 11th वी आर स्टार्टिंग द कोर्स, और टाइमिंग होती है इवनिंग में, क्योंकि ज्यादातर लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग, राइट? सो टाइमिंग शाम को ही रहती है, तो हमने जो अभी टाइमिंग रखी है वो 9 से 10 रखी है। अच्छा, सेम टाइमिंग जब आप अभी ज्वाइन कर रहे हो। शुक्रिया, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस ये जो भी आप बता रहे हो, इसमें रिकंसिलिएशन का पार्ट कवर करने वाले हो या नहीं? रिकंसिलेशन का मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि रिकंसिलेशन होता कैसे है। ओके, क्योंकि रिकंसिलेशन क्या है, आप रिकंसिलेशन से क्या समझते हो? वो पता नहीं है ना सर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, मैं कहीं पे सुना था। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछ रहे हो। लेट मी जस्ट टेल यू प्रॉपर्ली। रिकंसिलेशन क्या होता है? मटेरियल रिकंसिलेशन होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि जो भी मटेरियल आपके साइट पे आ रहा है, जो भी आपके स्टोर में है, और जो भी आपने एग्जीक्यूशन में यूज किया है, उन सभी चीजों की जांच पड़ताल करना, और ये पता लगाना कि कितना वेस्टेज हुआ है, कितना आपने यूज किया है, कितना आपको और मंगवाना है। इन सब चीजों के इन सब चीजों के पार्ट को अच्छी तरीके से मैनेज करना कहलाता है मटेरियल रिकंसिलेशन। तो हम वही डिस्कस करेंगे कि मटेरियल रिकंसिलेशन होता कैसे है, कैसे करना है आपको, और उससे कैसे आप वेस्टेज को कंट्रोल करते हो। गेटिंग इट? सर बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से सर, तो प्लीज, पता नहीं किसके, प्लीज। बहुत सारे लोगों ने माइक ऑन करके रखा है, तो प्लीज गाइस। आई थिंक सम टीवी टेलीविजन और समथिंग कुछ चले, जिसकी वजह से ये क्लास में बहुत डिस्टरबेंस हो रही है सर। फाइन, आई हैव म्यूटेड ऑल। ओके, सो होप यू आर गेटिंग। किसने भी रिकंसिलेशन वाला पार्ट पूछा था, हम उसको डिस्कस करेंगे। मेरा और एक क्वेश्चन है। For how many hours you are going to teach us? Like there are total 30 days, but in one day, how many hours? 1 hour per day, 1 hour। ओके, वो जो शेड्यूल है आपको शेयर हो जाएगा वंस यू विल एनरोल इन द क्लास। ओके, हम वीक में सैटरडे संडे मोर देन 1 hour क्लास करेंगे, और बाकी डेज लाइक देयर विल बी अ गैप ऑफ 1 or 2 days। सो यू कैन जस्ट से कि एक तरीके से अगर आप देखो तो पर डे 1 hour क्लास है इन द वीक डेज। ओके Sir, there will be Monday to exam at the end, and are you going to provide any certification? Sorry? There will be exam or certificate.
Yes, there will be a certificate. सर्वेइंग का क्लास भी रहेगा? Yes. सर सर्वेइंग जितना जरूरी है क्वांटिटी एस्टिमेशन के पर्पस से, या बेसिक कैसे आपको लेआउट करना है, कैसे क्या करना है, अब ये डेडिकेटेड सर्वे का कोर्स नहीं है. ओके. Sir, I have a doubt that in a quantity estimation, whether you are doing in a load bearing wall system calculation or a frame calculation. Sorry, please repeat it. So actually, we have to calculate in buildings, residential buildings. The old method we considered as a individual wall method, right? Correct. Frame. So Acha, okay. You are talking about that we'll be considering it in a frame structure way or just usual in old methods. What is the right? difference of individual and these two methods? How you calculate? Actually, in all the textbooks, it is regarding only individual wall method. Whether you are doing the framed calculation or not, that is a question. Correct. So see, when you discuss about the quantity estimation, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि what type of methodology you are opting for. ठीक है, अगर आपका framed structure है, so you know कि आप पहले columns बनाओगे, beam बनाओगे, ठीक है, तो आपको उस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा. और अगर आप ओल्ड मेथड से जाते हो तो आपको पता है कि हाँ वॉल आएगी, फिर बीम आएगी, फिर ऐसे आएगी. सो लाइक दिस इज नॉट कि मैं एक कोई पर्टिकुलर मेथड चूज करने वाला हूँ उसके लिए. ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वांटिटी एस्टिमेट करनी है, और अगर ये आपका फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे क्या चेंजेस आते, कौन कौन सी चीजें आपको पॉइंट करनी थी अपने माइंड पे अगर आप फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे काम कर रहे होते. सो आई विल बी एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स लाइक दिस. सर मेरा एक क्वेश्चन है. Sir, if possible, if you explain a single point, sir. Okay, just a movement, just okay. Just let me take the questions. हाँ, please. सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? प्लीज यार जल्दी पूछो, मतलब टाइम वैसे भी कम है. पूछ सकता हूँ क्या सर? प्लीज गो अहेड, जल्दी पूछो. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या इसमें एस्केलेशन के बारे में भी कवर करने वाले हो? क्या? सॉरी, किसके बारे में? एस्केलेशन. प्राइस एस्केलेशन. नो, आई विल नॉट बी कवरिंग अबाउट दैट. क्योंकि यार देखो, प्राइस एस्केलेशन क्या चीज है, आपको चीज समझनी पड़ेगी. प्राइस एस्केलेशन क्या होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? सर मैंने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आज लिस्ट आउट किया हूँ, स्पेशली इधर जब वेबिनार होगा उस टाइम पूछने के लिए, तो इसलिए सर आपको पूछ रहा हूँ whether you are going to cover. It's nothing यार. प्राइस एस्केलेशन मींस समथिंग इन बिटवीन प्रोजेक्ट में अगर कुछ प्राइस एक्सलेट हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उतना ही. यू आर आस्किंग क्वेश्चंस नाइसली बट या यस सर, गो अहेड या गो अहेड सर. No issue, let him ask. Yeah, he is asking good questions, sir. Actually, आपको समझना जरूरी है कि he has just pointed out all the things, right? What need to be asked. Okay, no issues. So see, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा ना, so you will not be worried about कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा. What is price escalation? अगर आप किसी भी चीज का प्राइस डिफर होता है, so how you will tackle that situation, right? आप उस सिचुएशन में कैसे क्या करोगे, right? So ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार प्राइस एस्केलेशन का. इसका क्वांटिटी एस्टिमेशन से कोई लेना देना नहीं. यहाँ पे आप जब बिलिंग करते हो या बिल रेज करते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको इस चीज का ख्याल रखना है, राइट? सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो आई थिंक यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि ये है क्या. अब ये ऐसी तो है नहीं कि यार कंक्रीट के बीच में प्राइस एस्केलेशन घुसा दिया मैंने. नहीं सर, मैं कुछ इंटरनेट में आज सर्च करके लिस्ट आउट बनाया था. Good. Yeah, that's really good. That's really nice. Okay. I have done some homework before coming here. Yeah, nice. Correct. That's very nice. That's very nice. So if it is hurting someone, so just collect all the things. We'll meet in the session. Yes. Sir, the classes will be in English or Hindi because I cannot follow Hindi. That's the biggest problem actually, right? Because few people are there who are good in understanding Hindi, and few are there who only able to understand English. So that's I definitely can't say, but I'll be using the mix. Okay, because I think everybody knows Hindi and English something, right? So that should not be the problem. I'll be using the mix.
Sir, can you please continue the theory part in English? Then you can discuss with Hindi if they have doubt. It's better for me. I'm from Kerala. I don't know most Hindi very well. I will try. I will try my level best. Okay, to deliver the things to both the participants, right? Whether you are comfortable in English or Hindi. Even if you have any confusion in between, then just your doubts will be welcome. No, not that much of trouble to you, sir. Just go Okay, on sir, with thank English, you. sir. Just go on with English. If someone have doubt in something, they will ask in Hindi, sir. That's it. That's better, sir. या क्योंकि आप इतना कैसे बताओगे सर, आप इतना कर रहे हैं, वही बड़ा बात है. Hello, please. I think English should be part of it because there are some of us that can't hear what is going on. Excuse me, sir. Definitely, I'll just. Yeah. So in the billing part, what the contents are included in the billing parts? Okay, so in billing, definitely I'll be just including the basics. Basics doesn't mean that only the theoretical part. I would tell you that once you estimate the complete thing, how you just pick up the rates from the documents and how you prepare everything. We'll be discussing about the RA bills and all, and what are the different types of billings you can do. So this kind of basic stuff, because there's nothing a very big thing to cover into the billing. When you discuss, when you focus on the billing part, as a billing engineer, you should have an experience, right? A billing engineer is a person who is interacting with the client and all, right? So you need other type of skill for that. How you can take money out of the client, okay? Something which is not included in the BOK part, how you'll take the money for that too, right? So वो सारी mix up skills होती हैं एक billing engineer में. So I'll just try to give you an idea that how billing actually happens, how you prepare the bills and everything. Okay. So one more thing, in the starting of the class, that's one of the recording is going on. That's regarding for the one the person is registered during the class, they will get the 50% discount. So is this applicable after the class? Is this okay, or we have to register right now during the class? But because the reason is complicated, if you will go for the registration the class, the focus will be there only. Sorry, but I have no idea about the discounts and all other things running. Okay, so better to discuss with the team, operation team, or someone whose contact number you have been given about. Okay, so I really don't have any information about the discounts and other stuff which is running. Okay, no, before the class it was going on that time, like 5 minutes before this. If it was going on, then definitely it will be applicable, but it's better you just discuss with the team. Sorry. Okay, thank you. No, thank you, sir. Thank you so much, sir. No issues. No issues. Sir, just I wanted to know about the you have a quantity surveyor, sir, already working in some company, because you have a lot of knowledge. Yeah, you are planning. I'm a planning engineer actually. Okay, but yeah, I do have a knowledge about the quantity estimation and all other stuffs. So basically, I'm teaching Primavera and quantity estimation parts and all these. Okay. You have done some course in some institution, sir? Some quantity surveying and billing, anything? In some NICMAR, are you a NICMAR graduate or something? No, I'm not from a NICMAR, sorry. So you have done and BTech and some courses on that, huh? Is it? I've done my MTech, but I was from structures. So I haven't choose that field to pursue, and I was fortunate about planning and project management and all this stuff. So nice. You did MTech in some NIT and BTech also from NIT, something? No, man. It's a government institute in Madhya Pradesh. Okay, nice. But you have nice set of knowledge, sir. Really, actually, you know what? What to teach, what everything is very good actually. The guy who was asking also, but you are giving a very nice satisfied answer to him also, like what is what. Just we have 1 hour, so I'm trying to satisfy you all because we don't have much time, right? Still I have I think I have left many questions which are no here. You have covered almost, sir. For a course to start for 30 days, these questions are enough. What you will cover, how you will cover, that's enough, sir. Correct. Let me just give a brief about again. Somebody has asked. Yes, sir. Yes, please.
Go ahead, please. Who is Will you asking? go through please course content? Course content. Yeah. I was just going to cover that. I told you. Okay. Okay. And one more thing before that, somebody asked in between, can you just give an example about like how the things will work when you'll have a frame structure type. So just imagine a scenario. Okay, I'm not able to. I will really not be able to do the entire stuff into Excel at this point of time. But I'll just give you a quick example. Okay, किसका question था वो? Is it? Are you still available? I am here, sir. I am here. Okay, so yes. Okay, so when you are working in a framed structure, आप क्या करते हो? आप कॉलम्स बनाते हो, आप बीम बनाते हो, आपकी स्लैब बीम्स बन जाएंगी, राइट? अगर आप उस टाइम पे फ्रेम स्ट्रक्चर में काम कर रहे हो तो जो आपकी स्लैब बीम है, राइट, डाउन पे आप क्या करोगे? वहां पर आप शटरिंग लगाओगे, राइट? सो जब आपकी स्लैब बीम होती है, राइट, और वहां पर वॉल अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, राइट, व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग अ वॉल डाउन दैट, ओके, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में आपकी बीम जो होगी वो पहले बनेगी। तो जो बीम का नीचे वाला पोर्शन है, at that entire portion you have to calculate the shuttering because you are doing it at that point of time, right? So you have to calculate the shuttering for entire part when you are executing it into the frame structure. But अगर आप दूसरे तरीके से बात करते हो, अगर आपने वॉल बनाई है और अब आप स्लैब की कास्टिंग करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? द पोर्शन विच इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द वॉल एंड स्लैब बीम, only that part you have to calculate for the shuttering. Hope you are getting. Yeah. Exactly. Got it. Okay, guys. So let me just give you a quick. Sir, I have one question. Please continue. Sir, can I see तुम्ही the BMPS format Yes, yeah, which we use in companies? Yes, ऐसा फॉर्मेट हम बनाएंगे. Sir, sir, I have another doubt. In the billing part, can I ask you, sir, or I have to wait? No, go ahead. I'm still in the Yeah. So, where in the case of analysis of valuation part, there is some depreciation will be there. How you calculate? Yeah, exactly. So sorry to tell you guys, मैंने वैल्यूएशन का मुझे आइडिया नहीं है. वी हैव अ सेपरेट फैकल्टी अबाउट द वैल्यूएशन, ठीक है, तो एक डेडिकेटेड कोर्स अलग से वैल्यूएशन का. आई रियली डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द वैल्यूएशन पार्ट, ठीक है, बट अगर इन बिटवीन किसी को लगता है, सो आई कैन जस्ट आस्क हिम टू मैनेज सम टाइम एंड गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दैट, बिकॉज जैसा उनके लिए मैं एस्टिमेशन का थोड़ा सा ब्रीफ देने वाला हूँ किसी क्लास में, राइट? सो दैट वे वी कैन जस्ट वर्क ऑन दैट. Yes, that you do it, sir. That's a very good thing, sir. वो कीजिए सर, definitely. Okay, I'll just ask him for a bit of time. अगर वो निकाल पाएंगे तो वैल्यूएशन का एक थोड़ा आइडिया बस आपको, राइट, बट वी विल नॉट गो डीप इनसाइड, राइट, बिकॉज वो दोनों अलग-अलग चीजें हैं यार. हाँ, नहीं जरूर सर, जितना भी टाइम निकालेंगे, निकाल के एक बार 1-2 क्लासेस भी लेंगे तो काफी है सर. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड सो मच थैंक यू फ्रॉम आवर साइड सर. श्योर आई डेफिनेटली ट्राई. ऑटोकैड की जरूरत नहीं है बॉस, एक्सेल यूज होगा, एक्सेल चलाना आना चाहिए बेसिक, बाकी हम सिखा देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है. ओके सर, बिलिंग का पूरा सर सिखाया जाए ऑलमोस्ट सर? यार जैसे मैंने अभी पहले भी बोला ना कि बिलिंग एक क्या सिखाया जाएगा. देखो यार, बिलिंग एक छोटा सा प्रोसेस है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए कि बिलिंग एक्चुअली में होती कैसे है. यार बिलिंग एक छोटा सा काम है यार, कि अगर मैं एकदम लेमन एग्जांपल तुमको दूं ना, तो अगर तुम दुकान में हो और कोई चीज की बिलिंग कर रहे हो, वही बिलिंग है. अब बिलिंग इंजीनियर को बहुत सारे अलग सिनेरियो से सोचना पड़ता है, ठीक है. वो स्किल्स डेवलप होती हैं आपकी जब आप उस जगह पर जाकर के बैठते हो और एक्चुअल में बिलिंग को एग्जीक्यूट करते हो. आपको बस ये पता होना चाहिए कि मटेरियल रिकंसिलेशन क्या होता है, ठीक है, रोलिंग मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एंड XYZ, ठीक है. तो आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगा मैं, बट मैं आपको बिलिंग इंजीनियर एग्जैक्टली तब तक नहीं बना सकता जब तक आप खुद जाकर के चीजों को नहीं करोगे, राइट, क्योंकि उसके लिए एक अलग स्किल चाहिए. मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दूंगा. आई कैन जस्ट टेल यू द थिंग्स कि जो आपको करनी चाहिए, वो एक अलग स्किल होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी. जब आप एक्सपीरियंस के साथ आओगे तब उस चीज में आप अच्छी तरीके से आ पाओगे. लैपटॉप फॉर्मेट है, जिसने भी पूछा था एक बार देख लो, मैं इसको ऐसा घुमा देता हूँ. ओके, गुड जॉब. ये मुझे लगता है तुम ही हो जो पूछ रहे थे, तुमने ही गुड जॉब लिखा है. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच. सो yeah, let me just give a quick overview about the entire things which we will be discussing. तो
तो देखो हमने जो एंटायर थिंग है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लेआउट की बात करेंगे कि किसी भी जगह पर अगर आपका प्लॉट है और आपको सिर्फ उसका जगह पता है, यू जस्ट नो द स्पॉट, ठीक है, तो आप वहां पे लेआउट कैसे करते हो किसी भी चीज को। जस्ट एक बेसिक सा एग्जांपल लेकर के, ठीक है, आप कैसे उस चीज की लेआउट करते हो, कैसे आप सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म करते हो, ठीक है, कैसे आप फुटिंग के लिए और कॉलम के लिए चीजों को एट द टाइम ऑफ सर्वेइंग कैसे लेआउट करते हो उन सब चीजों का। वंस यू फिक्स दिस जॉब, ओके, उसके बाद हम चलेंगे सर्वे के पार्ट में, ठीक है, और सर्वे के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको एक लैंड का सर्वे करना है, ठीक है, कैसे हमें डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट जगह के आरएल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिर हम चलेंगे आगे के पार्ट में कैसे हमें एक पूरी प्रोफाइल बनानी है, चाहे वो रोड की प्रोफाइल हो या किसी ड्रेनेज की प्रोफाइल हो, कैसे आप निकालते हो कि कहाँ पर राइज है, कहाँ पर फॉल है, और आपको कहाँ पे कहाँ पे आपको फिलिंग करनी है, ठीक है, या कहाँ पर आपको कटिंग करनी है, वो सारी कैसे आप निकालते हो, ठीक है। तो ये वाला सर्वे का पार्ट कवर करेंगे। और फिर ये ड्रेनेज का है सर्वे वाला पार्ट, इसको कवर करेंगे। इस तरीके से प्रोफाइल बनती है, ये देखो अंडुलेशन था, और इस स्लोप में अगर आपको ड्रेनेज बनानी है तो आप कैसे निकालोगे कि कितनी कटिंग कितनी फिलिंग करनी है, राइट। सो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंटूर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे कंटूर बना सकते हो एक्सेल में। हालांकि एक्सेल में इतना सही नहीं होता है, बट यस obviously we don't have any other option for that, so we'll discuss about this part. यार प्लीज लिखना बंद कर दो यार थोड़ा देर के लिए। Anyways, then we will move towards the quantity estimation part. हम डिस्कस करेंगे पूरा क्वांटिटी एस्टिमेशन कैसे करना है आपको। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स दी गई हैं आपको, जो हम पूरे अपने एंटायर कोर्स में कवर करेंगे। सेंटर लाइन लेआउट, ग्राउंड बीम, प्लेन फिलिंग, ठीक है, इन सारी ड्राइंग्स के हेल्प से हम पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे। एंड सर कोई तो कुछ तो पूछ रहा है बार बार, थोड़ा उसको आंसर दीजिए ना, वो स्क्रीन पे लिख रहा है बार बार। सॉरी यार, मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया, मैं उसको भी आंसर दूंगा, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट क्वांटिटी एस्टिमेशन पार्ट, ठीक है, टिल फिनिशिंग। उसके बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल कवर करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द बिलिंग पार्ट्स, okay, hope you are getting. Yes sir, and you can just refer the recording I have told in the starting, okay, तो आपको पता चल जाएगा डिटेल में। इसके लिए आईडी पासवर्ड मिलेगा हमें रोजाना एक्सेस करने के लिए? yes, you will get an ID and password to access everything. Sir, is there any slide that you have made to show the course content? I have asked about it. Sorry यार, ऐसा कोई dedicated file, हाँ, I have a syllabus, I think I have shared with the team, okay. So operation team, can you guys share the entire syllabus with the students if possible? Please sir, please share the syllabus. Hello, I'm audible. Is there anyone from operations? क्या कोर्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप will be होगा? shared, that guys, that syllabus will be shared with you guys, okay. Okay सर, Yes please. कोर्स के लिए अलग ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप? क्या? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहां पर आपकी अगर कोई ऐसी समस्या है या कुछ है तो उसको रिजोल्यूशन के लिए होता है, या जहां पर हम कंटेंट शेयर करते हैं, एक्सेल शीट्स वगैरह जो भी हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। सो फॉर दैट पर्पस देयर इज एंड व्हाट्सएप ग्रुप। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा? जी हाँ, वो सारा कुछ आपको मिलेगा वंस यू आर रजिस्टर्ड, एंड फॉर दैट इट्स बेटर टू कांटेक्ट विद द टीम। yes sir, thank you, everything clear. Thank you very much guys, I hope I have cleared all the questions. If you Thank you have sir, any thank other you. thing, Thank you sir, thank you sir. थैंक यू वेरी मच बॉस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी आवाज बहुत ही शानदार है। और कुछ डाउट है आपका? Enlightening our knowledge and giving more information. Thank you. Any other question guys? We can close the session. Building engineering.